بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے جاری کردہ ایس او پیز پر پورا اترنے والی 52 فیکٹریز کو پیداواری عمل شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن اداروں کو اجازت دی گئی ہے ان میں سائٹ لانڈھی اور کورنگی ملیر بن قاسم صنعتی زونز میں وہ قائم ہیں۔ کپڑے کے تاجروں، درزیوں اور الیکٹرانکس کا سامان بیچنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت دے دی۔ سارے کاروبار ایک ساتھ کھولنے کے بجائے مخصوص دنوں میں اور مخصوص اوقات میں کھولنے کی تجویز دی گئی ہے۔ صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی 24 گھنٹوں میں تاجروں کے ساتھ مل کر یہ طریقہ کار طے کرے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا۔ خواتین اور بچوں سمیت کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی پولیس چیف کے مطابق محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر تمام استثناء اور رعایت ختم کر دی ہے۔ پولیس افسران اور اہلکار موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ پابندی کا اطلاق خواتین، بچوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی ہوگا۔ کراچی پولیس چیف نے ہدایت کی ہے کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صدر مملکت اور علماء کرام کا اجلاس ہوا۔ باجماعت نماز کی صف بندی میں نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بچوں، بوڑھوں اور مریضوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع کیا گیا۔ رمضان المبارک میں اجتماعی سحری اور اجتماعی افطار نہیں ہوگی۔ یہ بھی طے پایا کہ مدارس اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ کلورین سے صاف کیے گئے فرش پر نماز ہوگی۔ مساجد کے احاطے میں نماز تراویح پر اتفاق کیا گیا۔ 20 نکاتی جو تجاویز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے۔ نماز تراویح کا اہتمام سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ ہر شخص کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، اس کی خلاف ورزی گناہ کا مرتکب ہوگی۔ ممتاز عالم دین اور مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کی نہیں 3 فٹ کے فاصلے کی بات ہوئی تھی۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے بھی 3 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی ہی تجویز دی ہے۔ تاہم صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بات پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران کہی۔ سب سے بڑی ذمہ داری اب خود مساجد اور مساجد کی انتظامیہ پر، علماء کرام پر ہے کہ وہ ان ایس او پیز کی پابندی اہتمام کے ساتھ کرائیں، اور جب تک کہ وہ ایس او پیز جب تیار نہ کے اوپر عمل نہ شروع ہو جائے اور اس کے راستے میں جتنی بھی اس کے تیاری کرنی ہے وہ مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ پرانی طریقے پر کام کریں۔ لیکن جب وہ تیار ہو جائیں اور صفوں کے درمیان جو فاصلے کی بات کی گئی ہے اس میں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں 6 فٹ یعنی کا فاصلہ 2 صفوں کے درمیان بھی اور صف کے اندر 2 نمازیوں کے درمیان بھی 6 فٹ کی بات کی گئی تھی جی، لیکن بعد میں پھر ہماری طرف سے سندھ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ WHO نے 3 فٹ کی بات کی ہے، کیونکہ WHO نے ایک مستقل ہدایت نامہ جاری کیا ہے رمضان کے لیے، جی بالکل، اور اس کے اندر بھی انہوں نے 3 فٹ کی بات کی ہے، لہذا
3 फुट का फासला काफी है। बाद में इसको तकरीबन मंजूर कर लिया गया था, लेकिन शायद वो तहरीर में नहीं आ पाया। सही है, तो अब 3 फुट का फासला होगा। सही है, लेकिन 2 सफ़ों के दरमियान 6 फुट का होगा, यानी पहली सफ और दूसरी सफ के दरमियान 6 फुट का फासला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया है कि 15 से 20 मई तक कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है, अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस आवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुताल्लिक समझाए। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। डर है कि लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म साहब और असद उमर साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो वो उस पर एहतजाज करते हैं। लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल वफाक की तरफ से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान ने लॉकडाउन किया, इसमें उनका कसूर नहीं। सिंध में सबसे ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस कराची ईस्ट में आए। सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह में कटौती का फैसला वापस ले रहे हैं, उन्हें इजाफी मराहत भी देंगे। और अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 22 रुपये और डीजल की कीमत 31 रुपये फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमत में कमी की जाएगी। आज से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में 43,000 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। वापसी के मुंतज़िर इन पाकिस्तानियों में तुर्की, बांग्लादेश और किर्गिस्तान समेत कई ममालिक में फंसे ज़ेर तालीम तलबा भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ जद्दा से 226 पाकिस्तानी PIA की खुसूसी परवाज़ से लाहौर लाए गए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता से 221 पाकिस्तानी PIA की परवाज़ से कराची पहुँचे। इससे कबल मस्कत से 2 परवाज़ों के ज़रिए 325 पाकिस्तानियों को लाया गया। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर से 200 और दुबई से 400 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान लाए जा चुके हैं। अमरीका में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 1,891 अफराद हलाक हो गए। अमवात 39,000 से बढ़ गई। अब तक 7,38,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में मज़ीद 540 और न्यू जर्सी में 230 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क में मरीज़ों की तादाद 2,40,000 और रियासत न्यू जर्सी में 81,000 से तजावुज़ कर गई। यूरोप में कोरोना से अमवात 1 लाख से तजावुज़ कर गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 15,000 से बढ़ गई। मलका बरतानिया की मंगल को सालगिरह के मौके पर तोपों की सलामी मनसूख कर दी गई। फ्रांस में मज़ीद 642 और इटली में 482 अफराद हलाक हो गए। दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,60,000 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 23,30,000 से ज़्यादा हो गई। 6 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने कोरोना के मामले पर चीन को नताइज भुगतने की वार्निंग दे दी। कहा कोरोना वायरस का फैलाव अगर गलती थी तो गलती होती है, लेकिन चीन जानते बूझते हुए जिम्मेदार है तो फिर यकीनी तौर पर उसके नताइज होने चाहिए। 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। बोले क्या ये गलती थी जो कंट्रोल से बाहर हो गई या जानबूझकर ये किया गया? दोनों बातों में बड़ा फर्क है। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, potentially lives like nobody's seen since 1917. Our relationship with China was good until they did this. It's a big difference. The question was asked, would you be angry at China? Well, the answer might very well be a very resounding yes, but it depends. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? Okay, there's a big difference between those two. In either event, they should have let us go in. We asked to go in very early, and they didn't want us in. I think they were embarrassed. I think they knew it was something bad, and I think they were embarrassed. लाहौर की एहतसाब अदालत ने जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 10 दिन की तौसीह कर दी। मीर शकीलुर रहमान के वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है।
मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। हम नहीं मानते, जियो को जीने दो। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को तीसरी बार जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में पेश किया गया। नैब ने उन्हें 34 साल पुराने निजी प्रॉपर्टी के मामले पर गिरफ्तार कर रखा है। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने मीर शकील उर रहमान का मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की और अदालत को बताया कि नैब ने मुख्तलिफ महकमों से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। लॉकडाउन की वजह से रिकॉर्ड लेने में वक्त लग रहा है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि अब नैब को किस जगह से रिकॉर्ड मिलना बाकी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एलडीए से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। मीर शकील उर रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब हुकाम अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नैब हुकाम इस वक्त के तमाम अफसरों की मीर शकील उर रहमान से मुलाकात करा चुके हैं। मीर शकील उर रहमान से मुलाकात के बाद नैब की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से ही तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है और इस मरहले पर नैब को मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि अब लॉकडाउन का बहाना बनाकर अदालत को गुमराह किया जा रहा है। मीर शकील उर रहमान ने नैब हुकाम के साथ तफ्तीश में ताउन किया। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी तासुब और बदनीति पर मबनी है क्योंकि उनके मीडिया हाउसेस नैब की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। 34 साल पुराने मामले पर केस बनाकर किरदार कशी की जा रही है। सहाफत में उनके खानदान की जद्दी पुश्ती खिदमात हैं। मीर शकील उर रहमान को नैब हुकाम ने जब भी शामिल तफ्तीश होने का नोटिस दिया नैब के सामने पेश हुए। नैब हुकाम ने पहला जिस्मानी रिमांड भी इन्हीं ग्राउंड्स पर अदालत से मांगा था। नैब हुकाम मजीद जिस्मानी रिमांड मांग कर अदालत का मजीद वक्त ज़ाया न करें। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया इस खबर को बड़ी करीब से देख रहा है। मीर शकील उर रहमान की सरकारी कैमरामैन से नैब की सलाहों के पीछे खड़ा करके तस्वीर बनवाई गई जो मेरे मुवक्किल के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। फिर नैब हुकाम ने वो तस्वीर अपने उन मनपसंद मीडिया हाउसेस को दी जो मीर शकील उर रहमान के मुखालिफ हैं। हमने ऐसे चैनल के खिलाफ बैनुल अक़वामी आला अदालत में मुकदमा भी जीता है। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि हचीमा की गिरफ्तारी की तस्वीर जारी करने पर अदालत आलिया का नैब के खिलाफ फैसला मौजूद है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जब खबरों का सवाल उठाया गया तो अमजद परवेज ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की तफ्तीश की अंदरूनी बातें कौन लीक करके मुखालिफ चैनल को देता है। हम अदलिया की इज्जत करते हैं और कभी समात पर असरअंदाज होने का सोच भी नहीं सकते। अदालत की इज्जत और तकद्दुस हमारा फर्ज है। अमजद परवेज ने कहा कि कालब नोटिस पर लोग नैब नहीं जाते मगर मीर शकील उर रहमान नैब में पेश हुए। नैब का मजीद 2 गवाहान से मीर शकील उर रहमान की मुलाकात को जवाज बनाकर जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा करना नहीं बनता। अमजद परवेज ने बार बार जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला भी दिया। अदालत ने मीर शकील उर रहमान को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए समात 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज किया। मीर शकील उर रहमान को नैब की गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ कराची में जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज का सिलसिला जारी है। जंग और जियो न्यूज़ के दफ्तर के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप में गुज़िश्ता रोज भी सहाफ़ी तंजीमों के अहदेदारों, सिविल सोसाइटी के अरकान, वकला बिरादरी, मजदूर यूनियन और सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। साबिक सूबाई वजीर और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा शब्बीर कायम खानी ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को सच दिखाने और हुकूमत की नाअहली अवाम के सामने लाने पर कैद किया गया। नेशनल ट्रेड यूनियन के नासिर महमूद, लियारी अवामी महाज के खालिक जरदान, मजदूर रहनुमा जहरा खान और जंग जियो जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने भी मीर शकील की रिहाई और आज़ादी सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म किया। लाहौर में भी डेविस रोड पर लगाए गए कैंप में एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुकर्रीन का कहना था कि 34 साल पुरानी जमीन की खरीदारी के बोगस मामले में मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करने का वाहिद मकसद मीडिया का गला दबाना है। पेशावर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हमायूं खान का कहना था कि मीडिया को निशाना बनाना जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं। कोयटा में किए गए मुजाहरे में नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी खैर बख्श और तर्जुमान अली अहमद ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को खिलाफ कानून और आज़ादी सहाफत पर कदगन करार दिया। मुल्तान जियो ऑफिस के बाहर मुजाहरे से खिताब में तंजीम ताजरान पाकिस्तान मुल्तान के सदर खालिद कुरैशी ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमले के मुतरादिफ करार दी। भावलपुर प्रेस क्लब में होने वाले एहतजाजी धरने में जमात इस्लामी की जिले रहनुमाओं ने भी शिरकत की। फैसलाबाद और सरगोदा में सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस्लाम कोर्ट में सहाफियों के साथ सिविल सोसाइटी, ताजिर नुमाइंदे और सियासी रहनुमा भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। छाछरों में भी शहरी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। जैकबाबाद और ठट्टा में सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया।